Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with some formulas of coordinate geometry. First, section formula. The coordinates of a point which divides the line segment joined by two distinct points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n are mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. Second, midpoint formula. The coordinates of midpoint of a line segment joining two distinct points x1 y1 and x2 y2 are x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. Third, centroid formula. If x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle, then coordinates of the centroid are x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Let us start practice set 5.2. Question number first. Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3. Solution. Find the coordinate of point P if P divides the line segment joining the point A and B. मतलब A एंड B एक लाइन सेगमेंट है जिसे P डिवाइड्स करता है किस रेशो में 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लेट द coordinates of point P be x, y and A x1 y1 B x2 y2 be the given points. Here x1 y1, x1 equal to -1, y1 equal to 7, x2 equal to 4 and y2 equal to -3 and n equal to 3, m equal to 2। तो यहाँ पर देखिए ये m is to n का रेशो है तो m इक्वल टू 2 हो गया और n इक्वल टू कितना 3। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 into x2 equal to 4 plus n equal to 3 into x1 equal to -1 divided by m plus n means 2 plus 3 equal to 2 4 जा 8 plus 3 1 जा माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 -1 into 3 तो -3 divided by 2 plus 3 equal to 5 equal to 8 plus minus 3 divided by 5 equal to 8 minus 3 equal to 5 divided by 5, 5 1 जा 5 equal to 1।
देयरफॉर x इक्वल टू 1, तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें y के लिए फाइंड करना होगा, तो y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m इक्वल टू 2 इंटू y2 इक्वल टू -3 प्लस n इक्वल टू 3 इंटू y1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू -3 इक्वल टू -6 प्लस 7 3 सा 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू -6 प्लस 21 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 5 1 सा 5 5 3 सा 15 देयरफॉर y इक्वल टू 3 देयरफॉर the coordinates of point P are 1, 3. Answer. Question second. In each of the following examples, find the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio A:B. First, P minus 3, 7, Q 1, -4 and A:B equal to 2:1. Solution. हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स और ए बी का रेशो गिवन है और कहा हुआ है कि ए पॉइंट जो कि डिवाइड्स कर रहा है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x, y. Let P x1, y1 and Q x2, y2 be the given points. Therefore, x1 equal to -3, y1 equal to 7, x2 equal to 1 and y2 equal to -4 and a equal to 2 and b equal to 1. Therefore, bisection formula. जब भी यहाँ पर हमें डिवाइड्स करने को आ गया कि कोई एक पॉइंट जो डिवाइड्स कर रहा है तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। x इक्वल टू a x2 प्लस b x1 डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल टू a:b की वैल्यू हमें गिवन थी 2:1 मीन्स a इक्वल टू 2 इंटू x2 इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू 1 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल टू a इक्वल टू 2 इंटू y2 इक्वल टू -4
plus b equal to 1 and y1 equal to 7 divided by 2 plus 1, a plus b है तो 2 plus 1 equal to 2 into minus 4 equal to minus 8 plus 1 into 7 equal to 7 divided by 2 plus 1 equal to minus 8 plus 7 equal to minus 1 divided by 2 plus 1 equal to 3. Therefore, the coordinates of point A are minus 1 by 3 comma minus 1 by 3. हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई माइनस 1 by 3 एंड माइनस 1 by 3. तो A के कोऑर्डिनेट ये होगा आंसर. सेकेंड P minus 2 comma minus 5 Q 4 comma 3 and A is to B equal to 3 is to 4. Solution. Let P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 be the given points. Here x1 equal to minus 2, y1 equal to minus 5, x2 equal to 4 and y2 equal to 3. अब हमें ए बी की वैल्यू लिखना होगा तो a equal to 3 and b equal to 4 by section formula. X equal to a x2 plus b x1 divided by a plus b equal to 3. A equal to 3 into x2 equal to 4 plus b equal to 4 into x1 की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय a plus b मीन्स 3 plus 4 equal to 3 4s are 12 minus plus minus 4 2s are 8 divided by 3 plus 4 equal to 7 equal to 12 minus 8 equal to 4 divided by 7. सेकेंड में हमें फाइंड करना है y की वैल्यू तो y इक्वल टू a y2 प्लस b y1 डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल टू a इक्वल टू 3 इंटू y2 इक्वल टू 3 प्लस b इक्वल टू 4 इंटू y1 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इक्वल टू 3 3s are 9 प्लस माइनस 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 इक्वल टू 20 माइनस 9 इक्वल टू 11 लेकिन यहाँ पर माइनस का 20 तो -11 डिवाइडेड बाय 7. Therefore the coordinates of point A are 4 by 7, -11 by 7. Answer. Third, P 2, 6, Q -4, 1 and A is to B equal to 1 is to 2. Solution. Let P x1, y1 and Q x2, y2 be the given points. Here x1 equal to 2, y1 equal to 6, x2 equal to -4 and y2 equal to 1 and a equal to 1, b equal to 2 by section formula. X equal to a x2 plus b x1 divided by a plus b
इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इंटू x2 इक्वल टू -4 प्लस b इक्वल टू 2 इंटू x1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 -4 1 इंटू -4 इक्वल टू -4 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ay2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल टू a इक्वल टू 1 इंटू y2 इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू 2 इंटू y1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 6 are 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 3. Therefore, the coordinates of point A are 0, 13 divided by 3 answer. Question number 3rd. Find the ratio in which point T -1, 6 divides the line segment joining the points P -3, 10 and Q 6, -8. सॉल्यूशन. यहाँ पर हमें रेशो फाइंड करना है, मीन्स m इंटू n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जो डिवाइड्स पॉइंट है वो हमें गिवन है t -1, 6 और जो दो पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट की p एंड q वो भी हमें गिवन है. लेट p x1, y1 q x2, y2 and t x, y be the given points. Here x1 equal to -3, y1 equal to 10, x2 equal to 6 and y2 equal to -8, x equal to -1 and y equal to 6. अब हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करना होगा. बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है. रेशो किससे फाइंड किया जा सकता है? सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है. तो सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m x की वैल्यू हमारे पास -1 इक्वल टू m इंटू x2 इक्वल टू 6 प्लस n इंटू x1 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n. अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -m माइनस n -1 का मल्टीप्लाई m प्लस n में होगा तो -m माइनस n हो जाएगा इक्वल टू m इंटू 6 इक्वल टू 6m प्लस -3 इंटू n इक्वल टू -3n इक्वल टू -m माइनस n इक्वल टू 6m प्लस -3n. अब हम यहाँ पर n वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं और m वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं. इक्वल टू -n -3n को इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा +3n इक्वल टू 6m. m को इक्वल टू राइट हैंड से लाने पर वो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 - 1 इक्वल टू 2n इक्वल टू प्लस 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 6 + 1 इक्वल टू 7m. अब यहाँ पर m बाय n की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2
डिवाइडेड बाय 7, मतलब यहाँ से n को मैं इक्वल टू के इसे लिखे क्योंकि डिवाइड में चेंज जाएगा, 7 इधर से डिवाइड में चला जाएगा तो m/n की वैल्यू हो जाएगी 2/7। देयरफॉर m/n इक्वल टू 2:7। देयरफॉर point T divides segment PQ in the ratio 2:7. Answer. Question number 4. Point P is the center of the circle and AB is a diameter find the coordinate of point B if coordinate of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. पॉइंट P जो सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, ए बी का एक डायमीटर है, तो हमें B के पॉइंट फाइंड करना है जबकि हमें A एंड P के कोऑर्डिनेट गिवन है। सॉल्यूशन, हमें क्या गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट P जो कि सेंटर पॉइंट है, ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है, डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, तो हमें ए के पॉइंट एंड पी के पॉइंट गिवन है और बी के हमें फाइंड करना है, मीन्स x2 y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेट ए x1 y1 बी x2 y2 एंड Px, y be the given points. Here x1 equal to 2, y1 equal to -3, x2 and y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x equal to 2 and y equal to 0. Point P is the midpoint. Point P एक midpoint है AB का, तो point P is the midpoint of segment AB. Therefore, by midpoint formula, x equal to x1 plus x2 divided by 2, therefore equal to -2. x equal to -2 equal to x1 plus x2, x1 equal to 2 plus x2 divided by 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, therefore 2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 2 प्लस x2, 2 प्लस x2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आनी है। देयरफॉर x2 इक्वल टू -4 -2 इक्वल टू -6। देयरफॉर x2 इक्वल टू -6। अब हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर y इक्वल टू 0 इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 इक्वल टू -3 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1।
by cross multiplication, therefore 0 equal to 3 plus y2, therefore y2 equal to 3। यहाँ पे क्या -3 + 2 तो यह y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। -3 को इक्वल टू को लेफ्ट में से लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव का हो जाएगा। therefore the coordinates of point B are -6, 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें x2 और y2 की वैल्यू मिल गई है, मतलब B पॉइंट मिल गया -3, 3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो in which point P k, 7 divides the segment joining A 8, 9 and B 1, 2. Also find K. Solution. Find the ratio in which point P k, 7 divides the segment joining A and B. Also find K. तो यहाँ पर हमें P, A, B तीनों की वैल्यू गिवन है और जो डिवाइड्स पॉइंट है P उसके हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट A x1, y1 B x2, y2 and P x, y be the given points. Here x1 equal to 8, y1 equal to 9, x2 equal to 1 and y2 equal to 2. x equal to k and y equal to 7. अब यहाँ पर हमें डिवाइड्स पॉइंट दिया है, मतलब यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। सेक्शन फॉर्मूला y equal to m y2 plus n y1 divided by m plus n. Therefore y equal to 7 equal to y2 equal to 2 m as it is plus y1 equal to 9 into n divided by m plus n. Therefore by cross multiplication 7 into m plus n equal to 2m plus 9n. Therefore 7 into m equal to 7m plus 7n equal to 2m plus 9n. Therefore अब यहाँ पर हम n वाली वैल्यू एक साइड भी और m वाली वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, तो 7n माइनस 9n इक्वल टू 2m minus 7m. Therefore 7 minus 9 equal to minus 2n equal to 2 minus 7 equal to minus 5m. माइनस से माइनस कैंसल। Therefore अब हमें यहाँ पर m by n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। Therefore m is to n इक्वल टू 2 is to 5। हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। x equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n equal to m equal to 2 into x2 equal to 1 plus 8 divided by 2 plus 5। x की वैल्यू हमारे पास k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने y का फॉर्मूला बाद में x का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि y से हम m/n की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर हम x का फॉर्मूला अगर पहले लगाते तो हमें दो वैल्यू रहती जो कि फाइंड करना रहता है, क्योंकि k रहता, x की वैल्यू हमें k गिवन है, k और m और n तीनों की वैल्यू हम एक से फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले हमने y का फॉर्मूला लगाया क्योंकि y = 7 हमें गिवन है, जिससे m/n की वैल्यू आ गई। अब हमने x का फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय 5 + 2 = 7 इक्वल टू 40 + 2 = 42 डिवाइडेड बाय 7 7 6 जा 42। देयरफॉर k = 6, तो हमारी k की वैल्यू आ गई है 6। देयरफॉर पॉइंट P divides segment AB in the ratio 2:5 and the value of k is 6. Question number 6. Find the coordinate of midpoint of the segment joining the points 22, 20 and 0, 16। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। लेट a x1, y1 इक्वल टू a 22, 20, b x2, y2 इक्वल टू b 0, 16। Let the coordinate of the midpoint be px, y। Therefore by मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x1 इक्वल टू 22 प्लस x2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 11 जा 22 इक्वल टू 11। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y1 मीन्स 20 प्लस y2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 प्लस 16 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18। देयरफॉर the coordinate of the midpoint of the segment joining 22, 20 and 0, 16 1, 18 answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.